Hello everyone, welcome to this new session on quantitative aptitude. In the previous session we have started solving the quant section of CAT 2017, and today in this session also we will solve some more question of the same exam. So let's move on to our first question of the day. This question says if a seller gives a discount of 15% on the retail price, she still makes a profit of 2%. Which of the following ensures that she makes a profit of 20%? So it is a question of profit and loss mixed with percentages. So discount is given as 15% on the retail price and she still makes a profit of 2%. So let us assume that the cost price of that article was 100. So if the cost price is 100 and she still makes a profit of 2%, so we can say the selling price would be 102. 2% का profit हो गया 100 rupees. So which of the following ensures that she makes a profit of 20%? अब एक और चीज़ दी गई है कि डिस्काउंट वॉज 15%. तो अगर हमें रिटेल प्राइस निकालना हो, सो दैट वुड बी 100 अपॉन 100 माइनस द डिस्काउंट. तो 100 माइनस 15 विच इज़ 85 into selling price which is 102. So that will be the formula for calculating the discount. Sorry, calculating the retail price. 100 upon 100 minus discount into selling price. 17 into 5, 17 into 6, 5 into 20, 20 into 6 is 120. So the retail price has to be 120. तो cost price is 100 rupees. अब उसने कहा है कि the profit should be 20%. तो अगर cost price 100 है, profit is always on the cost price. So selling price should be 120 in order to make a profit of 20%. And retail price was also 120. That means in order to satisfy this condition, the article should be sold at the retail price. So the correct option has to be option number D, sell at retail price. Let's move on to the next question now. This question says a stall sells popcorn and chips in packets of size large, super and jumbo. The numbers of large, super and jumbo packets in its stock are in the ratio 7 is to 17 is to 16 for popcorn and 6 is to 15 is to 14 for chips. If the total number of popcorn packets in its stock is the same as the number of chips packets, then the number of jumbo popcorn packets and jumbo chips packet are in what ratio? तो हमें तीन चीज़ें दी गई हैं, large, super and jumbo, and we have popcorn and we have chips. So that is what is given. यहाँ पे रेशो है 7 is to 17 is to 16 का पॉपकॉर्न में, एंड चिप्स में रेशो है 6 is to 15 is to 14. और आगे का गया तो टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स एंड टोटल नंबर ऑफ चिप्स पैकेट्स आर सेम. So let's say large popcorn are 7x, small are 17x and jumbo are 16x. तो total popcorn हो जाएंगी सबका sum, that is total number of popcorns. Similarly अगर chips में large हैं 6y, 15y small हैं और jumbo में है 14y, तो total number of chips हो जाएंगे तीनों का sum. उसने कहा है कि बोथ ऑफ दीज आर इक्वल. टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स, टोटल नंबर ऑफ चिप्स पैकेट्स बोथ आर इक्वल. तो इनको इक्वल रख देते तो 17 प्लस 16 इज 33 प्लस 7 इज 40x इज इक्वल टू 15 प्लस 6 21 प्लस 14 इज 35y, और वी कैन से x इक्वल्स टू 5 into 7 5 into 8 7/8y. Now it is asking the number of jumbo popcorn packets and jumbo chips packets का रेशो. तो जम्बो पॉपकॉर्न पैकेट्स थे 16x, जम्बो चिप्स पैकेट्स थे 14y, तो दोनों का रेशो हो जाएगा 16x अपॉन 14y. x की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 7/8y, तो यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दो 16 into 7/8y और यहाँ था 14y, y से y कैंसिल
7 to 14, 8 into 2 16, so the answer is 1. So the ratio has to be 1:1. That is option number A. So this is the conventional way to solve this question. Let's try to solve this question by using another approach. उसने कहा है कि total number of popcorn packets and total number of chips packets are same. तो हम मान लेते हैं total number of popcorn packets are x, total number of chips packets are also x, क्योंकि दोनों सेम है. अब हमें रेशो बताना है जंबो पॉपकॉर्न का जंबो चिप्स के साथ. तो जंबो पॉपकॉर्न का 16 रेशो है, टोटल रेशो मिला के है 40. और तो जंबो का पार्ट कितना जाएगा 16/40 इंटू टोटल वैल्यू विच इज़ x. इसका रेशो बताना है जंबो चिप्स के साथ. जंबो चिप्स का रेशो है 14, टोटल रेशो इज़ 35, दैट इज़ 14/35 इंटू टोटल वैल्यू विच इज़ x. x से x कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 35/14 इंटू 40, 7 इंटू 2, 7 इंटू 5, 60 into 5 80, 40 into 2 80, that is 1 again. So either of the approach you can use, the answer is same, 1:1. Let's move on to the third question now. It says suppose C1, C2, C3, C4, C5 are 5 companies. The profits made by C1, C2, C3 are in the ratio 9:10:8. Profits made by C2, C4, C5 are in the ratio 18:19:20. If C5 has made a profit of 19 crore more than C1, then the total profit in rupees made by all the 5 companies is how much? तो हमें C1, C2, C3 का रेशो दिया गया है which is 9:10:8 और C2, C4, C5 का रेशो दिया गया है which is 18:19:20. अब रेशो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है ये, हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा. अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे पहले ये देखिए इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है. दोनों में C2 इज़ कॉमन, लेकिन C2 की वैल्यू यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 18 है. तो इसको आप पहले सेम बना लीजिए दोनों में. तो इसको सेम कैसे बनाए, दोनों का LCM ले लीजिए, LCM ऑफ 10 एंड 18, दैट विल बी 90. तो मेक बोथ ऑफ दीज वैल्यू इक्वल टू 90. तो 10 को 90 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90 हो जाएगा. 18 को 90 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 90 हो जाएगा. अब क्योंकि यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया है तो इन दोनों रेशो को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 9 into 9 ये हो जाएगा 81, 8 into 9 हो जाएगा 72. और क्योंकि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इन दोनों रेशो को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 19 into 5 इज़ 95, 20 into 5 is 100. Now we can say that C1 is to C2 is to C3 is to C4 is to C5 will be 81 is to 90 is to 72 is to 95 is to 100. That is how we can calculate the entire ratio. दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. पहले देखिएगा कौन से दोनों रेशो में कौन सा कॉमन है विच वॉज C2. अब उसकी वैल्यू को हमें सेम बनाना है, उसके लिए हमने LCM लिया और उस नंबर को फिर हमने मल्टीप्लिकेशन करके वो नंबर ले आए और जिससे भी मल्टीप्लाई किया था बाकी पूरे रेशो को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट रेशो पे इम्पैक्ट ना आए. सो दैट इज़ आवर फाइनल रेशो C1 से लेकर C5 तक का. अब उसने कहा है कि C5 हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 19 करोड़ मोर देन C1, यानी C1 और C5 का डिफरेंस इज़ 19 करोड़. इनके रेशो में डिफरेंस इज़ 19 रेशो और एक्चुअल डिफरेंस इज ऑल्सो 19 करोड़. दैट मीन्स 1 रेशो इक्वल्स टू 1 करोड़. तो टोटल प्रॉफिट उसने पूछा है तो टोटल रेशो देख लीजिए कितना है, इन सबको ऐड कर दीजिए. तो 8 + 9 is 17 + 7 is 24 + 9 is 33 + 10 is 43 and 1 + 2 + 5 is 8, so that is 438 ratio. And 1 ratio is 1 crore, so 438 ratio is 438 crores. The correct answer has to be A option, 438. Now let's move on to our next question. It says that the number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. If 30% of the girls and 45% of the boys get admission, the percentage of candidates who do not get admission. So that is a question of percentages. Number of girls is twice the number of boys.
and 30% of girls, 45% of boys, they get admission. So if number of girls is twice the number of boys, let's say number of boys are 100, the number of girls would be 200, twice the number of boys. इसमें 100x 200x भी ले सकते थे, वेरिएबल्स भी ले सकते थे, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन परसेंटेजेस, सो वी हैव टेकन द एब्सोल्यूट वैल्यूज. तो बॉयज़ 100 और गर्ल्स उसका डबल विच इज़ 200. 30% ऑफ गर्ल्स एंड 45% ऑफ द बॉयज़ गेट एडमिशन. तो बॉयज़ का 45% होगा 45, क्योंकि टोटल 100 थे. गर्ल्स का 30%, 200 का 30% वुड बी 60. सो दीज आर द पीपल हु गॉट एडमिशन. तो 45 और 60 मिला के टोटल हो गया 105 पीपल गॉट एडमिशन आउट ऑफ 300. 100 बॉयज़ थे, 200 गर्ल्स थी, तो टोटल 300 में से 105 ऐसे थे जिनका एडमिशन हो गया. तो ये कितना परसेंट हुआ वो निकाल लेते हैं. 300 का 10% होता है 30, तो 5% हो जाएगा 10% का आधा, विच इज़ 15. इसका अगर 30% निकाले तो 10% का 3 गुना, विच इज़ 90. 30% प्लस 5%, 35% हो जाएगा 90 प्लस 15, विच इज़ 105. तो यही वैल्यू हमें निकालनी है. सो दैट इज़ 35% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स. तो यानी 35% का एडमिशन हो गया. हमें बताना है द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन. तो अगर 35 गॉट एडमिशन, then the people who did not get admission is 65%, which is D option. Let's move on to the next question. This is the last question for this session. A man travels by a motorboat down a river to his office and back with the speed of the river unchanged. If he doubles the speed of the motorboat, then his total travel time gets reduced by 75%. The ratio of the original speed to the motor boat to the speed of the river is how much? So this is a question of boats and streams. तो उसका कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं. हम मान लेते हैं कि बोट की स्पीड x है और रिवर की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड इज y. तो इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं. वन इज डाउन स्ट्रीम विच इज विद द स्ट्रीम, एंड सेकेंड इज अप स्ट्रीम विच इज अगेंस्ट द स्ट्रीम. तो जब बोट डाउन स्ट्रीम जाएगी यानी विद द स्ट्रीम जाएगी, तो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि कुछ स्पीड बोट की होगी कुछ स्पीड रिवर की होगी, तो रिजल्टेंट स्पीड ऐड हो जाएगी. जब बोट अप स्ट्रीम जाएगी यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगी, तो रिजल्टेंट स्पीड होगी x माइनस वाई, क्योंकि अब रिवर की स्पीड बोट के अगेंस्ट होगी. तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, दैट इज द रिजल्टेंट स्पीड. तो पहले वो बोट डाउन स्ट्रीम जाती है, देन इट कम्स बैक. तो टोटल टाइम कितना लगेगा? हम मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो d है. तो पहले वो d डिस्टेंस गई डाउन स्ट्रीम, उसके बाद वापस d डिस्टेंस गई अप स्ट्रीम. तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डाउन स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा d अपॉन स्पीड विच इज़ x प्लस वाई इन डाउन स्ट्रीम. अप स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा d अपॉन x माइनस वाई. तो टोटल टाइम हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो. तो दैट इज़ द टोटल टाइम आने और जाने का, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम. अब उसने कहा कि विद द स्पीड ऑफ द रिवर अनचेंज्ड. रिवर की स्पीड तो ये रहेगी भाई, बोट की स्पीड डबल हो गई यानी x की जगह हो जाएगी 2x. तो अब उसका टाइम 75% कम हो जाता है. तो नया टाइम निकाल लेते हैं. अगर स्पीड डबल कर दें तो डाउन स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2x प्लस वाई, और वापस आने में d अपॉन 2x माइनस वाई. तो टोटल टाइम हो जाएगा इन दोनों का सम. तो उसने कहा कि अब जो नया टाइम आया, दिस इज द न्यू टाइम, ये पुराने टाइम से 75% रिड्यूस हो गया है. अगर 75% से रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स 25% बचा होगा. तो यानी 1/4 बचा होगा सिर्फ, यानी ये नया टाइम जो है पुराने टाइम का 1/4 है. सो दिस न्यू टाइम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द अर्लियर टाइम. Now we can solve this equation. हमें बताना है रेशियो ऑफ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मोटर बोट टू द स्पीड ऑफ रिवर, यानी हमें x इज टू y की वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ द बोट टू स्पीड ऑफ द रिवर. सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y. d तो कॉमन होगा, कैंसिल ही हो जाएगा सब में.
LCM अगर लें तो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ऊपर आएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, 1/4 इधर था ही। यहाँ पे LCM आएगा 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई विच इज़ 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर था तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई, y से y कैंसिल, इधर भी y से y कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x से x कैंसिल, 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 7y स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ गया हमारा 7/4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x अपॉन वाई आ जाएगा √7/2, यही हमें निकालना था, x और y का रेशो, दैट इज √7/2। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोट्स एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लीजिएगा बुक में से, तो यू विल बी बेटर एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस क्वेश्चन। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। If you have any queries regarding your preparation, you can directly write to this email ID. We'll again meet with some new topic. Till then, keep practicing and have a good time.